I only had one scene and two lines, and I took 21 takes. I remember. Congratulations, happy marriage anniversary. ये रही आपकी टिकट. What are you saying? मैंने इसके 21 सारे takes? सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना दिए. हैप्पी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी एनुअल टिकट कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैरिज एनिवर्सरी, कुछ बोला मैंने. मेरे कॉलेज का अभी भी मेरा नाम, फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज. I walked the ramp with the likes of Manpreet Barar at that time, Rahul Dev at that time, and I was in first year. Suddenly मेरे हॉस्टल का निकनेम आज तक मॉडल है. So they call me as राजेश मॉडल. Wow. मतलब क्योंकि इतने सारे राजेश कुमार थे ना बिहार के कि उसमें कंफ्यूजन हो जाता कौन राजेश कुमार, राजेश मॉडल. बीच में ब्रेक ऑफ भी हुआ था, ऐसा नहीं है. एक साल, Really? हाँ, एक साल हमारा ब्रेक ऑफ भी हो गया था, झगड़ा हो गया था. तो हुआ कि ठीक है बस अब रहने तो हो गया, कोई शादी वादी नहीं करेंगे. तो उन्होंने अपने माँ बाप को अनाउंस कर दिया हम शादी नहीं करेंगे, आप लड़की ढूंढिए. उसने बोल दिया आप लड़का ढूंढो. सो ये जब आप सारी चीजें सीखते हैं तो इसके बाद भी आपको कॉमेडियन बुलाया जाता है. रोसेश जैसे किरदार को इस शरीर, इस पर्सनालिटी के साथ अगर आदमी बिलीवेबल बना सकता है, तो अगर उस आदमी के ऊपर काम किया जाए और उसको उस तरह का किरदार ही दिया जाए तो वो क्या नहीं कर सकता है. Hi, this is Rajesh Kumar and you are watching me on Midday. Mumbai Meri Jaan. Hello everyone, welcome to Midday. This is Ocean Fernandez and joining us today is an actor par excellence, Rajesh Kumar, who is out with his brand new web series, Freedom at Midnight. But today it's not just about this series. Today we are here to discuss his journey in the city through Mumbai Meri Jaan. Hello sir, how are you? Thank you. It's so, I'm so honored कि मतलब No, got this our honor. opportunity to be part of Mumbai Meri Jaan. It's our honor, sir, because you know you're a seasoned actor. You've been हाँ, मतलब मैं वो seasoned actor हूँ जो सिर्फ गर्मी में काम करता है. pun intended. But I mean, you've been in the industry for so many years. 25 years. Yes, and you're finally doing a role which we never imagined you to do. You know, I mean, Pakistani PM. First of all, please tell us, जब ये role आया आपके पास, Right. तो उनकी तरफ से आया या फिर आपने कुछ audition किया and you were like, let me just experiment. कविश जो कास्टिंग कर रहे थे इसका, तो उनके यहाँ से आया था. एंड मैंने बोला यार मैंने वजन बढ़ाया हुआ है और इस समय मेरे बाल नहीं है, तो इससे कि सर एग्जैक्टली वही चाहिए. सो देन इवेंचुअली आई वेंट फॉर द ऑडिशन. आई डिड द ऑडिशन एंड सबसे बड़ा जो एक स्ट्रेस होता है ना कि यू आर कैरिंग सर्टेन इमेज. Yes, So to break that, I think that look was the look. was, I mean, it was very close resemblance to Yes. Liaquat Ali Khan. Yes, in the we've seen the real- pictures. Yeah. Yes. So तो वहाँ पे 50% तो यात्रा वहीं हो गई. 50% ये हो गया कि you know I had to perform. So it was a good 3.5 minute one shot. We did the audition. जो एपिसोड में है भी पार्लियामेंट सीन, उसका ऑडिशन चल रहा था. So imagining in a closed room where no one is there and you have to imagine 500 people and then you are performing with the pitch and with everything. So luckily that worked in the favor and they eventually मतलब ये हुआ कि अच्छा लियाकत ये कर रहे हैं. Your journey has been commendable. I mean, it's not just this one character. Throughout the years, आपने जितने भी characters किए हैं, it has stuck with people. And you being in the city, the hub of entertainment, please tell us, how long have you been here, first of all? So the first time I came to Mumbai was somewhere on 11th June 1998. बिहार से आया था मैं because वहाँ से I had to get furniture. My sister had shifted here. तो first time I was coming to Mumbai तो मैं बिहार से उसका furniture लेकर के आ रहा था. So I never thought of being an actor. उस समय graduation खत्म हुआ था and I was called to be with my sister because she was pregnant at that time. और उस समय मैं सीधा ये गोरेगांव में ही आया था. और आज हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सड़क पे 2 ही ऑटो एक साथ क्रॉस कर सकता था. और यहाँ पे रात को 8 बजे के बाद कोई ऑटो वाला नहीं आता था इस एरिया में. इस रेस्टोरेंट के ठीक सामने की बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी इतना बड़ा जो हाईवे कॉम्प्लेक्स बन चुका है. सो दिस वाज फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड एवरीथिंग. एंड तो मुझे ना गोकुल धाम उतरना पड़ता था एंड देन आई यूज्ड टू वॉक टुवर्ड्स साई बाबा कॉम्प्लेक्स बिकॉज ना कोई बस आती थी. सब गोकुल धाम, इधर कोई आता ही नहीं था. सो आई केम टू दिस एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फिर आज मतलब मैं 26 साल हो ही गया और 26 साल में अभी तक मैं इसी एरिया में रह गया. वाई? बिकॉज आई एम नॉट
अ वेरी बीच काइंड ऑफ अ पर्सन। आई मतलब समुद्र मुझे उतना ज़्यादा नहीं लुभाता है Okay. जितना मुझे ग्रीनरी और पहाड़, Greenery. बिकॉज आई डन माई स्कूलिंग इन देहरादून, आई ऑलवेज सीन माउंटेन अराउंड मी, ऑलवेज सीन ग्रीनरी। तो आज भी लकली द हाउस आई हैव, आई मीन सामने वो पूरा सिर्फ आरे का Are जंगल है, सो आई लव दैट व्यू। lucky. Now that you have been here for all these years, do you remember कि जब आप तभी आए थे, हाँ। वो एक्टिंग का जो कीड़ा होता है, हाँ, वो हाँ। कब और कैसे आया? एक कीड़ा तो था यार, कीड़ा तो पहला प्ले ही मैंने कुछ नर्सरी उसमें किया था, लेकिन बतौर एक्टर बनना है ये नहीं तय Not in था। all seriousness. नॉट इवन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन Really? एक्टर। हाँ, क्योंकि तब भी मुझे लग रहा था कि मैं इस ये यही मेरा प्रोफेशन बनेगा क्या, यही लाइफ होगी। आई वाज स्टिल इन डाउट अबाउट इट एंड देयर वाज नो अरमान सच कि मेरा ड्रीम ये था और वो था, वैसा कुछ नहीं था। It just happened, and it just happened, and then I started taking interest in acting because I saw that when I'm performing, people are reacting. हाँ. तो अब पता चला कि अच्छा मतलब ये कला है आपके अंदर, ये विधा है। Whether it was in 10th standard, 11th standard, 12th standard in my school in Dehradun, जब इंटर स्कूल कंपटीशन होता था या इंटर हाउस कंपटीशन प्लेस को लेके होता था, तो उसमें अवार्ड मिल गया था, कुछ कुछ प्राइज मिल जाता था बेस्ट एक्टर का। कॉलेज गया तो वहाँ स्ट्रीट प्ले किया, वहाँ मॉडलिंग की। मेरे कॉलेज का अभी भी मेरा नाम, फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज, आई वॉकड द रैम्प विद द लाइक्स ऑफ मनप्रीत बरार एट दैट टाइम, राहुल देव एट दैट टाइम, एंड आई वाज इन फर्स्ट ईयर। सडनली मेरे हॉस्टल का निकनेम आज तक मॉडल है, सो दे कॉल मी एज राजेश मॉडल। Wow. मतलब क्योंकि इतने सारे राजेश कुमार थे ना बिहार के कि उसमें कंफ्यूजन हो जाता कौन राजेश कुमार, राजेश मॉडल। so, तो उस समय भी नहीं पता था। फिर मुंबई में जब काम मिला, यही साईं बाबा कॉम्प्लेक्स में एक फ्रेंड है मेरे, वो एक्टर हैं हर्ष खुराना, वो मिल गए। उनके प्लेस देखे थे मैंने दिल्ली में, वो मुझे नहीं जानते थे, मैं उनको जानता था। एंड आई जस्ट अप्रोच्ड हिम, आई सेड कि यहाँ पे कहीं कोई प्ले होता हो तो बता दो, बिकॉज आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू विद माय लाइफ आफ्टर ग्रेजुएशन। Yeah. Be a civil servant, try for UPSC or journal, mass communication or what. So then he sent me to Bhavan's college, वहाँ पे प्ले का रिहर्सल हो रहा था। जिस प्ले के रिहर्सल को देखने में 2 महीना लगा, 2 महीने तक देखता रहा मैं। एक दिन एक लड़का नहीं आया था एंड आई हैड टू डू प्रॉक्सी, और मैं वो जब उन्होंने बोला कि स्क्रिप्ट दे दे, मैंने कहा नहीं, मुझे सबका सब कुछ याद है, बिकॉज आई वाज जस्ट सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग देम। So I went on stage in that rehearsal without any script in my hand, and I did proxy, and exactly correct time पे entry, correct time पे exit, correct dialogue delivery, and then after that whole thing the director walks up to me and says कि ये रोल तुम ही कर लो यार। So वो play करने रुका and I just stayed back. Do you remember your first audition in the city? काफी टाइम हो गया रहेगा। बहुत सारे दिए थे, but first audition, and because first काम जो मिला था वो बिना ऑडिशन का मिला था। जो एक सीन मिला था मुझे, स्टार बेस्टसेलर चेकोस्लोवाकिया करके एक वो था, उस समय स्टार बेस्टसेलर बहुत आ रहा था। सो ईशान त्रिवेदी जी जिन्होंने 7.5 फेरे भी बनाया था, वो अमेजिंग राइटर, तो वो एक सीरीज बना रहे थे एंड रजत कपूर एंड राजेश्वरी सचदेव वर इन दैट, एंड आई वाज सपोज्ड टू प्ले श्वेता क्वात्रा's हस्बैंड। आई ओनली हैड 1 सीन एंड 2 लाइन्स एंड आई टुक 21 टेक्स। आई रिमेंबर कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, ये रही आपकी टिकट। What are you saying? मैंने इसके 21 सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना दिए, हैप्पी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी एनुअल टिकट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैरिज एंड वो कुछ बोला मैंने, मतलब आई वाज सो। But उन्होंने ऐसे मतलब बोला नहीं कि अरे यार। अरे बट आई वाज रिकमेंडेड बाय द राइटर, सो एंड दे सेड हो जाएगा, कर लोगे, हो जाएगा। बट ये नहीं मालूम था कि ये किस टेक लग जाएंगे। But then sir, जैसे अभी काफी सारे लोग बोलते रहते हैं कि टेलीविजन में पैसा बहुत है, like in terms of monetary, financial gains and all of that. But then there are actors who don't want to continue television for life. उनको वो image break करना है, कुछ और करना है. Did you experience that kind of roadblock कि नहीं अभी बस टीवी बहुत टीवी कर लिया, I कुछ think in experiment करते हैं? 2017 I hit that roadblock when I jumped into farming. Yes. I think it was not because of that I jumped into farming. Farming happened and then I realized that I'm done with, working in Showbiz, television. Reason was कि ये ना एक longer format का commitment है। Yes. इसमें ना डेट एडजस्टमेंट मुश्किल होती है प्रोडक्शन हाउस के लिए, आपके लिए। सो इफ यू गेट अ स्मॉल वर्क आल्सो व्हिच इज मच मोर मीटियर, या इट कैन थोड़ा एक मोनोटनी जो है ऑफ गोइंग एवरी डे एंड परफॉर्मिंग द सेम थिंग, साल दर साल आप वही कर रहे हो, तो वो मोनोटनी ब्रेक करने के लिए अगर आपको बाहर कुछ एक कॉफी ब्रेक भी मिलता है ना,
you do not get an opportunity to do that. उसमें क्या होता है ना कि you hit that roadblock in terms of कि थोड़े से complacent हो जाते हैं आप अपने आप पे जो काम करना या सीन के ऊपर काम करना उसमें थोड़ा सा एक कहीं lax attitude भी आ जाता है. When you are doing OTT, when you are doing films, the best part about is कि ये preparation time ज़्यादा होता है, shooting time कम होता है और वो कम टाइम में आप सबसे ज्यादा अवेयर होते हो बिकॉज ये एक ही बार होता है. yes and also the impact हाँ, टेलीविजन में सुधार के मौके हैं. फॉर हाँ. एग्जाम्पल मैं सारा भाई की बात करूं, अगर जो पहले जो 4 एपिसोड थे या 6 एपिसोड थे ना, उसमें मेरी जो आवाज थी और जो बात 10 एपिसोड के बाद हुआ है, आई हैड टाइम टू ग्रो इन इट. बट इन दिस यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद Yeah. फुल आर्मर. it's one opportunity Yes, there is no मतलब Room for error. error. So that is why this medium is much more enjoyable. and you enjoy challenges I believe अरे मतलब क्या चैलेंज नहीं लिए हैं लाइफ में. obviously that phase came when you were facing financial troubles but you have a family and you want to secure your Yeah. children you want their financial status to be secure so acting as a route ये आगे चल के how are you navigating this path ऑब्वियसली फिर जब कर्जे इतने हो गए थे तो आपके पास जो विधा, मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मैं बताता हूँ कहाँ से वापस मैं कूदा एक्टिंग में बहुत तगड़े से. सो आई वाज वाचिंग दिस इंटरव्यू ऑफ अभिषेक बच्चन okay टॉकिंग अबाउट अमिताभ बच्चन जी, वेयर ही सेड दैट कि यू नो मोहब्बत के पहले वाली बात थी कि ऐसा ऐसा सारा कुछ हो Yes. गया था. सो ही स्पोक टू अभिषेक दैट वेगली व्हाट आई रिमेंबर कि यू नो दिस इज द थिंग व्हिच आई नो हाउ व्हाट टू डू अबाउट इट, यू नो एक्टिंग. And now to come out of it, I need to go back to the thing which I know Yes. what I do, the basic of it. And that's how he crossed over and went to Yashji's house Yes. and got Mohabbat and revived his Yes. career and whatever. So मुझे ये लगा कि हाँ यार ये बेसिक मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, ये मुझे भी तो पता है. So let me see, but this time let me explore the other thing Yes. because any which ways there is a break. People have not seen me in television for quite long. And let me explore the OTT and films and as the ऊपर वाला नेचर ने इतनी प्रकृति ने इतना इम्तिहान लिया था तो प्रकृति ने फिर देना भी शुरू कर दिया Yes. कि then back to back I remember it's so surreal, it's so funny that in last 24 years or 23 years I would say that I did only 2 films in my life, Super Nani and Student of the Student Year of the 2. Year. 2022 जुलाई से लेकर के दिसंबर जनवरी तक, हाँ जुलाई से लेकर जनवरी तक मैंने 4 दिन के गैप पे 4 फिल्में की हैं. आई डिड बिनी एंड फैमिली, तेरी ठीक है. बातों में उसके बाद इमीडिएटली 3-4 दिन के बाद मुझे हड्डी मिली. उसके 3-4 दिन के बाद मैं राउतू का राज शूट कर रहा था और उसके करेक्ट 4 दिन के बाद मैं तेरी बातों में बातों। उलझा जिया कर रहा था. वो खत्म होते ही मैं ये मेरी फैमिली कर रहा था. एंड दैट वाज ऑल बिकॉज तब तक वजन मैंने बढ़ा लिया था और मेरे बाल छोटे थे तो मुझे सारे रोल्स ना ऐसे परफेक्ट बैठ गए. सो तेरी बातों में उलझा जिया, यू विल सी आई हैव शॉर्ट हेयर, हड्डी आई वाज गंजा. बिनी एंड फैमिली बिकॉज इट हैपेंड पहले तो इट Yes. वाज अ नॉर्मल लुक. बट वो वाले में जो राउतू का राज किया था जिसमें इंस्पेक्टर था तो उसमें वो गढ़वाली इंस्पेक्टर, उसके भी छोटे बाल थे. बट आई गॉट टू डू सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स इन लास्ट 2 years. would you Yeah. consider this as your second innings Oh yeah. This is the best inning. so you know I obviously I don't know if I can ask but Yeah, then please, what is your love story I mean ये तो आपने किसी को बोला नहीं रहेगा how did you meet your wife Oh yeah, that was Kamal funny tha. did you So meet her I- in the city or No, I did not meet her in the city. I saw her in the city, but I met her in Pune, and we had gone out for a one-day shoot. So क्या हुआ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत फनी था वो. So डेक्कन एक्सप्रेस पकड़ा मैंने दादर से, ठीक है. उस समय हम भी जवान थे, है ना. अभी भी है मतलब 23-24 I was, yeah. So I did not have any girlfriend at that time. और ऐसा था कि मैं बैठा हुआ हूँ डेक्कन में, ये मान लो कि वो 3-3 वाली सीट है हाँ. ना एसी में, तो ये आई है असली वो दरवाजा एसी वाला जो वहाँ के खुलता है वो. एंड आई सॉ दिस गर्ल वॉकिंग इन, वॉक पास मी, एंड
ब्यूटीफुल गर्ल वॉक पास्ट मी, आई सेड यार यही बनी होगी शायद मेरी वाइफ ना आज वाले शो में, ये मन में आया है ख्याल। कट टू पूना पहुंचे, मैं अपने मेरे कुछ उस समय कॉलेज के दोस्त थे जो सिम्बायोसिस में पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने तो ग्रेजुएशन खत्म हो गया था, वो उनका अपना मैनेजमेंट चल रहा था, तो दे केम टू रिसीव मी, सो आई सेड कि ठीक है मैं शूट पे उनको बोल दिया था आप लोकेशन बता दो, तो Yeah. मोबाइल नहीं था बट वो पेपर पे आपने लिख लिया लोकेशन की कहाँ पे है। एंड देन मैं उन लोग से मिल करके फिर मैंने कहा ड्रॉप कर दो मुझे लोकेशन पे, होटल पे। एंड देन जैसे ही होटल का लिफ्ट खुला तो सामने वही लड़की है। मैंने करेक्ट सोचा, मैंने कुछ और ही मांगा होता था। एंड वी जस्ट एक्सचेंज्ड लुक एंड आई न्यू कि अच्छा यही है। अब वो जो सीन था पुणे में, एक ही रात की शूटिंग थी, नाइट था। मैं कहा यार इसके बारे में पता तो करूं ये कौन है। सो मैंने वो जो मस्टर होते थे पहले साइन करने के लिए ना, तो उसमें आपका नाम और हाँ। फोन नंबर सब लिखा रहता था। मोबाइल आया था बट मोबाइल वही 32 रुपए Yeah. कॉल तो होता, तो आप इमरजेंसी के लिए रखते थे। सो उसके घर का नंबर और उसका मोबाइल नंबर मैंने बहुत इजी था याद करना, वो दोनों याद कर लिए। से लेकर के ना प्रोडक्शन वाले से याद कर लिया। And just to impress her, I said, your contact number is this, and your landline number is this, and she's like, Did she think you're like, हाँ, कि मतलब ये, how do you know? I said nothing, just like that. it's a very unique way of flirting. आप घर का नंबर याद कर लेते हो ना, बिकॉज उस समय वही था। तो वो करके, और वो सीन्स वगैरह ऐसे थे हमारे की जहाँ पे मैं उसको टॉर्चर कर रहा हूँ, सिगरेट से जला रहा हूँ, और Oh my and then I God. run away to Dubai, I try to kill her and all those things happened. तो वो सब चल रहा था, लेकिन उसके बीच में ना गैप, सीन के बीच में ना, नीचे घर पे कर रहे हो, फिर आप टेरेस पे कर रहे हो, Yeah. तो लाइटिंग शिफ्टिंग में आपको Yeah. टाइम मिल रहा था। और वो बड़ी ठंडी शाम थी, मतलब वेदर वाज सो प्लेजेंट, आई विल टेल यू कि तब एक्सप्रेसवे बनना भी नहीं शुरू हुआ था। और वो जो जिस लोकेशन पे हम कर रहे थे, तो इट वाज पिच डार्क, देयर वाज हाईवे, यू कुड सी इन द डार्क की लाइट गाड़ी जा रही है, और एक झूला था वहाँ पे, और उस झूले पे हम दोनों उस ट्रांजिशन में बैठ जाते थे। और वहाँ पे वो मौसम इतना बढ़िया था ना कि उसमें बेस थोड़ा और बढ़ा करके ना, देन यू स्टार्ट फ्लर्टिंग। एंड देन नेक्स्ट डे आई रिमेंबर व्हेन द शूट गॉट ओवर एंड 11:30 की डेक्कन थी, या पता नहीं क्या टाइम था। So we stood at the door of Deccan this thing train और Deccan Queen, और हम लोग ने उसके दरवाजे पे खड़े होकर के पूरे रास्ते पूना से लेकर के मुंबई दादर तक बात करते हैं। Wow. So that was the time we thought that we have got that connection, and then eventually you propose and then the love happened। और वो तो बड़ा उस जमाने में, ऑनेस्टली बताऊं तुम्हें, तो बहुत ट्रेडिशनल तरीका ही होता था कि लड़का लड़की तो मिल लिए, लेकिन पहले माँ बाप को मिलवा दो। Yes. तो Did that go बिहार, smooth? नो, बिहार के माँ बाप और यहाँ पंजाब और सिंध तो वो गुजरात मराठा सब एक करने में जो है ना, बहुत मुश्किल हुआ था। बट इवेंचुअली तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी वाला जो डायलॉग था वो चला, और फिर शादी हो गई। बीच में ब्रेक ऑफ भी हुआ था, ऐसा नहीं है। एक साल, Really? हाँ, एक साल हमारा ब्रेक ऑफ भी हो गया था, झगड़ा हो गया था। तो हुआ कि ठीक है बस अब रहने तो हो गया, कोई शादी वादी नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपने माँ बाप को अनाउंस कर दिया हम शादी नहीं करेंगे, आप लड़की ढूंढिए। उसने बोल दिया आप लड़का ढूंढो। एक साल तक वो लोग लड़का लड़की ढूंढते रहे। मैं और उसमें फिर 31 दिसंबर को 2004, मतलब 2003 31 हाँ। दिसंबर 2004 वो अपना एक फॉरवर्डेड मैसेज आ जाते ना, हैप्पी न्यू ईयर, Yeah. उसके नंबर से आया। अब मेरा जो है बत्ती हुआ, मैं कहाँ हो, उसे मिलने गया, पता चला यही नेस्को में घर के पास ही वो कुछ पार्टी वार्टी चल रही थी वहाँ पे, तो वहाँ थी, वहाँ मिली। मैंने कहा यार बस कर लो यार, लड़की ढूंढा नहीं मिली। वो कह रही मैं भी लड़का ढूंढ रही हूँ, नहीं मिली, लेकिन अब मैं कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मैं अनाउंस कर चुकी हूँ। So now you will have to, Push things push ahead. these things ahead. And I spoke to my sister in January, I remember, around 4th, 5th. Her name is Jyoti, my sister, or or Madhvi's Masi, her name is also Jyoti. Oh. So she was close to this Jyoti, I am close to this Jyoti. So both the Jyotis though spoke to each other. और तब वो इश्क की ज्योति और शादी की ज्योति जली।
and then may we finally got married कि इसके पहले मूड बदले break off हो just get married. Now that you are doing all these versatile kind of roles, but we also saw, Sara Bhai 1 happened and then the reunion happened. And is it a conscious choice to break away from that image of, the comedy guy or the guy you go to just for comic roles? आगे चल के अगर आपको comedy role वापस मिल भी गया, तो आप क्या करते? यार देखो मैं एक ना बहुत थोड़ा सा लंबा आंसर होगा इसका. नहीं. कॉमेडी ना फॉर मी इट्स अ क्लासिकल म्यूजिक. आप बाथरूम में तो हर गाना गा लेंगे, Yeah. लेकिन जब आपको राग बेस गाना पड़ता है ना तो आपकी ट्रेनिंग काम आती Yes. है. ये विधा मेरे अंदर है दैट आई कैन सिंग क्लासिकल Yes. सॉन्ग इन द नेम ऑफ कॉमेडी. ओनली थिंग विच इज अ वेरी सैड पार्ट इन आवर इंडस्ट्री, जो टाइपकास्ट कह लो या पीपल सीइंग इन द सेम लाइट Yeah. एज अ कॉमेडियन, वहां पे ना the makers have to make a choice Yes. that do you see me now as a trained actor because I can do comedy, or you see me as a comedian, which unfortunately we are tagged as Yes. यार वो तो कॉमेडियन है. पुरानी फिल्मों में होता था, बट अगर आप महमूद साहब को उठा के देखो, भाई साहब उनसे बड़ी ट्रेजेडी एक्टिंग किसी ने की ही नहीं है. क्या है मतलब एक कॉमेडियन के अंदर इमोशन इतना सॉलिड है बिकॉज उसको रिदम पता है, उसको मीटर पता है, उसको डायलॉग के पॉजेस पता होते हैं बिकॉज उसको मालूम है कि ऑडियंस क्या सुन रही है और मुझे कहाँ पे अपने पल्स को रोकना है. क्योंकि आप अल्टीमेटली घूम के सारी चीजें टाइमिंग पे कर रहे हैं ना. आप वो विधा में आप एज एन एक्टर अगर सुनना जान गए, लिसनिंग, you do not need to work on your reactions or Yes. think what you are going to react. You will just listen and react. Naturally. So ये जब आप सारी चीजें सीखते हैं तो इसके बाद भी आपको कॉमेडियन बुलाया जाता है. It's disappointing. That's the word. That's the word. So for me, it is a very, now it's a conscious choice, and Yes. whatever character I'm getting slice of life में हंसा लूंगा. मुझे मालूम है अगर मुझे थोड़ा सा समय दे दो तो मतलब अगर स्क्रिप्ट हल्की है और ऐसे निकल रही है, मैं उसमें आपके लिए स्माइल तो लेके आ जाऊंगा. वो मुझे पता है बिकॉज नाउ आई नो द रिदम एंड मीटर ऑफ इट. Yes. अब मुझे वो ताल पता है कि किस कौन से राग दीपक गाऊंगा और दिया जलेगा. You if you know that note in as a singer, I mean you have achieved it. So that achievement unfortunately is tagged here, and they do not realize कि अच्छा ये कर सकता है तो ये भी कर सकता है. अगर रोसेज जैसे किरदार को इस शरीर इस पर्सनालिटी के साथ अगर आदमी बिलीवेबल बना सकता है, तो अगर उस आदमी के ऊपर काम किया जाए और उसको इस तरह का किरदार ही दिया जाए तो वो क्या नहीं कर सकता है. कोई भी कैरेक्टर कर सकता. Thank you so much. Thank That you. is a It was wrap. lovely. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.